Hello my dear students, this is Swati Chawla. I welcome all of you on my YouTube channel. In this video, we will discuss the session 4, that is how to retrieve the data using query of unit 3, that is database management system of part B, right? These are the various subtopics that we will cover in this video. We will start with the introduction of query, then we will discuss different methods to create a query. We can create a query using wizard also, as well as we can create our query using design view also. Remaining topics of this session we will discuss in our next video, that is DML and DDL commands. In this video we will discuss the process to create a query using design view as well as using the wizard. So now, without wasting our time, let's start our today's video. But before starting this, if you are new to my channel and not subscribed it yet, please subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. So now, let's start our today's video. So now, let's start with the introduction of what is query. As you know, we are having 4 database objects, that is table, query, form and report, right? So query displays the specific records from a table that meet the certain criteria, and criteria means condition. अब query का मतलब क्या है? आप लोगों को एक table given होगी, based upon your requirement, based upon some condition, you will be retrieving the data from the table. So that is known as your query. For example, if I am having a table with name student, उसमें data store है having columns as roll number, name, class, marks and address, right? Now, if I say कि I want to display the records or I want to retrieve the records of those students who secure marks above 50, so that means this is my query और सिर्फ वो rows ही retrieve होंगी जो इस condition को satisfy करेंगी, right? Now, let's see practically how to create a query. First of all, you have to open your OpenOffice base. Then you have to select to open an existing database file. Now here you are getting 2 options. What do you want to do? That is create a new database or open an existing database. So as you know, we are having an existing database. यहाँ पर आपके recently used database के names आ जाएंगे file के. So then you have to click on this finish option. So when you will click on this finish option, आपका ये OpenOffice base की window open हो जाएगी. So at the left side you can see we are having 4 database objects: table, queries, forms and report, right? So I have to click on this query option. तो जब हम query पर click करेंगे तो you can see the task create query in design view, use wizard to create a query and create query in SQL view. SQL की जितनी भी commands हैं, again are very important, that we will discuss in our next video. In this video we will discuss the methods to create a query in design view and using wizard. अब wizard का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, right? It will help you. आपके पास डायलॉग बॉक्स आएंगे, स्टेप बाय स्टेप इट विल गाइड यू कि आपको किस तरीके से स्टेप्स परफॉर्म करने हैं. तो एज यू कैन सी, इफ आई एम क्लिकिंग ऑन दिस टेबल ऑप्शन, तो आई एम हैविंग अ लिस्ट ऑफ टेबल्स हियर, राइट? ये सारी टेबल्स हमने पिछले जो भी कंसेप्ट्स किए हैं, सेशंस किए हैं, उसमें हमने क्रिएट किए हैं. सो लेट्स सपोज आई एम ओपनिंग दिस डिटेल्स टेबल. अब यहाँ पर रोल नंबर है, नेम है, परसेंटेज एंड स्ट्रीम कोड है, राइट? अब इस पर हम क्वेरी लगाएंगे. You can see the data, roll number 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is my primary key. Names are given, 6 names. Percentage 89, 99, 45, 85, 98, 96. And S code means stream code is also given. 2 students are having stream code 101, then 102, 103 and then 104, right? And the table name is details. So I am clicking on this queries option and selecting the second option, use wizard to create a query. So after clicking on this, you will get this dialog box. So at the left you can see 8 steps are here, right? अब ये आपको गाइड करेगा. सपोज अब मुझे क्वेरी लगानी है, लेट मी शो यू द टेबल with name details. अब ये टेबल है बच्चों, right? Now let's suppose I want to display the records of those students जिनका जो S कोड है बच्चों, that is either 101, सिर्फ 101 का करते हैं पहले, राइट? अब या फिर आप 104, जो भी आपको मींस
क्वेरी लगानी हो या परसेंटेज के अकॉर्डिंग कि जिसके परसेंटेज 50 अबव है, राइट। अब सपोज हम लोग क्वेरी लगाएंगे टू डिस्प्ले द नेम्स। अगर रिकॉर्ड सारे रिकॉर्ड करना हो तो रोल नंबर, नेम, परसेंटेज, एस्कोर सब कुछ चाहिए। सिर्फ नेम चाहिए तो दैट ऑल्सो वी कैन डू। एस्कोर जिसका क्या है 101। अब 101 एस्कोर के मेरे पास दो स्टूडेंट्स हैं, नेहा एंड निशा, राइट। पहले बिल्कुल सिंपल क्वेरी अप्लाई करेंगे। क्वेरी पर क्लिक करेंगे, यूज विजार्ड टू क्रिएट अ क्वेरी, टेबल्स, क्वेरी डिटेल्स। अब यहाँ से आपको अपनी टेबल सेलेक्ट करनी है। तो अब हम किस टेबल पर वर्क करें, डिटेल्स टेबल पर, तो देन यू हैव टू सेलेक्ट द टेबल डिटेल्स। अब मेरे पास अवेलेबल फील्ड्स कितनी है उस टेबल में, 4 फील्ड्स आर देयर, रोल नंबर, नेम, परसेंटेज एंड एस्कोर, राइट। अब आपको क्या करना है, फील्ड्स इन द क्वेरी की जो क्वेरी मैं लगा रही हूँ कि मुझे एस्कोर 101 का रिकॉर्ड चाहिए। अब आपको उसमें क्या क्या चाहिए फील्ड्स जो आपका क्वेरी रिजल्ट आएगा। इफ यू वांट ऑल द फील्ड्स तो आप यहाँ पर ये एरो की प्रेस कर सकते हैं। कुछ पर्टिकुलर ही चाहिए, लेट्स सपोज आई वांट नेम, परसेंटेज एंड एस्कोर, सपोज आई वांट दिस 3, राइट। तो देन यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब सॉर्ट बाय कि आपको जब ना रिजल्ट है जो आपकी क्वेरी आएगी वो सॉर्टेड फॉर्म में चाहिए कि नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो यू कैन क्लिक ऑन दिस अनडिफाइंड ऑर्डर। अगर आपको लेट्स सपोज मुझे वो नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, राइट, तो यहाँ से आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन बाय कि अगर आपको परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी सॉर्ट करना हो, राइट, हम अभी सिर्फ नेम के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करेंगे। तो देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस नेक्स्ट ऑप्शन। अब आपको क्वेरी लगानी, सेलेक्ट द सर्च कंडीशन। नाउ लेट्स सपोज I have to display the name of fields, right? Condition is equal to किसके इक्वल हो वो 101, ये कंडीशन थी, राइट। अब एस्कोर जिसमें 101 होगा उसका मेरे पास नेम, परसेंटेज एंड एस्कोर आ जाएगा, राइट। तो देन यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट ऑप्शन। अगर आपने इवन मल्टीपल क्वेरीज देनी हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि जिसका एस्कोर 101 भी हो और परसेंटेज भी इससे ज्यादा हो, राइट। अभी हम इसके लिए चलो नहीं करते हैं, बैक अगर हम जाएं, नेक्स्ट सिर्फ इसी एस्कोर के लिए करते हैं। नेक्स्ट डिटेल्ड क्वेरी, शो ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ द क्वेरी, समरी क्वेरी, हमने डिटेल्ड क्वेरी चाहिए। देन नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब ये मेरे पास अलाइस की जो आपको कॉलम का नेम जो हमने डिटेल्स नेम से टेबल क्रिएट कर रखी है वहां पर ये नेम्स गिवन है बेटा, नेम, परसेंटेज एंड एस्कोर। अलाइस मीन्स कि अगर आपको एस कोड को लेट सपोज मैं चाहती हूँ कि एस कोड ना लिख करके स्ट्रीम कोड लिखा हुआ है तो हमने क्या दे दिया यहाँ पर अलाइस दे दिया, राइट। अलाइस मीन्स अल्टरनेट नेम, कि जहां पर कॉलम का नेम डिटेल्स टेबल में एस कोड है, जब मैं क्वेरी अप्लाई करूंगी तो वहां पर क्या लिखा हुआ आ जाएगा, स्ट्रीम कोड। तो देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस नेक्स्ट बटन। अब ये मेरे पास जो ओवरव्यू है मेरी क्वेरी का वो आ गया बच्चों। फील्ड्स इन द क्वेरी, मुझे नेम चाहिए, परसेंटेज चाहिए, स्ट्रीम कोड चाहिए। एज यू कैन सी अब यहाँ पर स्ट्रीम कोड लिखा हुआ आ रहा है बेटा, राइट। सॉर्टिंग ऑर्डर हमने सॉर्टिंग की है नेम के अकॉर्डिंग, असेंडिंग ऑर्डर। सर्च कंडीशन क्या लगाई है, जिसका स्ट्रीम कोड किसके इक्वल होगा 101, सिर्फ वही रिकॉर्ड्स आएंगे, ग्रुपिंग अभी हमने नहीं की, राइट। तो देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस फिनिश बटन। तो एज यू कैन सी अब मेरे पास ये क्वेरी का रिजल्ट आ गया बच्चों। 2 स्टूडेंट्स थे जिसका स्ट्रीम कोड 101 था, ये उनकी परसेंटेज आ गई और ये नेम्स आ गए। अब नेम्स पर हमने ऑर्डर भी अप्लाई किया, दैट इज असेंडिंग ऑर्डर। तो एज यू कैन सी जो मेरे पास नेम्स आए हैं ये किसकी फॉर्म में आए बेटा, ऑर्डर की फॉर्म में, मीन्स ये प्रॉपर सॉर्टेड ऑर्डर है, अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर, राइट। सो इस तरीके से हम क्वेरी अपना डिजाइन कर सकते हैं यूजिंग विजार्ड। अगर आपको यहाँ पर आपकी ये क्वेरी सेव हो गई है, क्वेरी डिटेल्स, ये हमारी पिछली क्वेरी थी, क्वेरी डिटेल्स 2 जो हमने अभी अप्लाई की है, राइट, ये ऑटोमेटिकली आपकी क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। नाउ सेकेंड मेथड, क्रिएट क्वेरी इन डिजाइन व्यू। अब इसमें देखो क्या करना है, क्रिएट क्वेरी इन डिजाइन व्यू में टेबल्स या क्वेरीज, क्वेरीज मीन्स जो हमारे पास क्वेरी रिजल्ट आया वो भी एक टेबल की फॉर्म में ही है। अगर मुझे उस पर फर्दर कोई क्वेरी लगानी हो तो दैट आई कैन ऐड फ्रॉम इट हियर। अगर टेबल्स पर लगानी है, टेबल्स पर क्लिक करेंगे, लेट सपोज इसी डिटेल्स टेबल पर भी वर्क करेंगे, देन यू हैव टू क्लिक हियर ऐड। जैसे ही आप ऐड पर क्लिक करोगे ये टेबल आपकी यहाँ पर आ जाएगी बेटा। अगर आपको एक से ज्यादा टेबल पर वर्क करना है तो आप वो एक से ज्यादा टेबल्स भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस क्लोज बटन। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं जो ये बॉटम में आपको गिवन है। सबसे पहले है फील्ड, कि फील्ड आपको कौन कौन से डिस्प्ले करानी है।
अगर मैं डिटेल्स डॉट स्टार लिखूंगी तो ऑटोमेटिकली इट विल डिस्प्ले रोल नंबर, नेम, परसेंटेज एंड स्ट्रीम कोड, राइट। अब अगर मुझे लेट सपोज सिर्फ नेम डिस्प्ले कराना है और परसेंटेज डिस्प्ले करानी है, राइट, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, नेम एंड परसेंटेज, राइट। अब अलायस मैंने आपको बताया, आपने किसी को अल्टरनेट नेम देना हो, टेबल सेलेक्ट करोगे, कौन सी टेबल में से, डिटेल्स टेबल में से चाहिए, क्योंकि अभी हमने एक ही टेबल ऐड की है। सॉर्टिंग, अगर आपको सॉर्ट करना है, लेट सपोज इसको सॉर्ट करते हैं इस टाइम परसेंटेज के अकॉर्डिंग, असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर, या फिर डिसेंडिंग टू असेंडिंग, डिसेंडिंग टू असेंडिंग कर लेते हैं इस टाइम। अभी हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया, राइट। अब यहाँ पर देखो विजिबल के आगे जो हमने कॉलम के नेम सेलेक्ट किए, नेम एंड परसेंटेज, उसके ऑटोमेटिकली यहाँ पर टिक आ गया, दैट मीन्स ये आपके कॉलम्स विजिबल होंगे। कहाँ विजिबल होंगे, जो हमारी क्वेरी का रिजल्ट आएगा। फंक्शन अगर आपने अप्लाई करना हो, फंक्शन अप्लाई कर सकते हो, मीन्स परसेंटेज का सम करना हो, एवरेज करना हो, मैक्सिमम परसेंटेज फाइंड आउट करनी हो, इस तरीके से। क्राइटेरिया की जो परसेंटेज पर हम लगा देते हैं, जिसकी परसेंटेज अबव 70 है, मीन्स ग्रेटर देन 70, आई एम राइटिंग इट हियर, तो जिसकी परसेंटेज ग्रेटर देन 70 है उसका रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा, राइट। और यहाँ पर दे रखा है मीन्स मल्टीपल कंडीशंस, या तो परसेंटेज ग्रेटर देन 70 हो, या फिर अगर मैंने यहाँ पर एक और कॉलम ले रखा है उसकी कंडीशन के लिए। एक ही लाइन में कंडीशन स्पेसिफाई करोगे तो वो आपकी एंड कंडीशंस के लिए कंसीडर होगा, मीन्स मल्टीपल कंडीशंस अगर आपने देनी हो तो। आफ्टर स्पेसिफाइंग ऑल दिस यू हैव टू क्लिक ऑन द रन क्वेरी ऑप्शन। यहाँ पर आपको ऑप्शन गिवन है रन क्वेरी एंड द शॉर्टकट की इज F5। अगर आपने अपनी क्वेरी को क्लियर करना हो, ये सारा कुछ हटाना हो, तो दिस इज द ऑप्शन ऑफ क्लियर क्वेरी, बट आई हैव टू रन द क्वेरी, so either I can click on this button or I can press the shortcut key, that is F5, right? So I'm clicking here to run the query. So as you can see मेरे पास रिकॉर्ड्स आ गए जिसकी परसेंटेज अबव 70 है, राइट, 99, 98, 96, और ये अरेंज भी होकर के आए हैं सॉर्टिंग में। अगर मैं इसको यहाँ से असेंडिंग ऑर्डर सेलेक्ट कर देती हूँ, दोबारा से क्वेरी रन करो, तो एज यू कैन सी अब मेरे पास ये जो रिकॉर्ड्स हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो चुके हैं, राइट। तो अगर मुझे अब यहाँ से क्राइटेरिया चेंज करना होगी जिसकी परसेंटेज अबव 80 है, आई थिंक अबव 80 भी सारी है, राइट, तो लेट्स राइट इट 70। अब मुझे इसमें सपोज एस कोड का कॉलम भी चाहिए, एस कोड ऐड कर दिया, इसको हम विजिबल कर देंगे। यहाँ से हम टेबल सेलेक्ट करेंगे, डिटेल्स, ये अपने आप विजिबल हो जाएगा। तो देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस रन क्वेरी। अब देखो रन क्वेरी में मेरे पास जिसकी परसेंटेज इतने से अबव है, कितने से अबव, 70 से अबव, वो रिजल्ट आ गया, प्लस एस कोड। अब एस कोड ये सारे आ गए। अब अगर मुझे मल्टीपल कंडीशन देनी हो कि एस कोड मेरा किसके इक्वल हो, 101, अब ये दोनों कंडीशन चेक करेगा। दोनों कंडीशन मीन्स कि जहां पर परसेंटेज भी 70 से अबव हो प्लस एस कोड 101 हो। एस कोड 101 मेरे पास सिर्फ 2 रोज है, नेहा एंड निशा। तब जब हम इसको रन क्वेरी पर क्लिक करेंगे तो अब ये इसने मल्टीपल कंडीशन चेक किए, राइट। तो अगर आपको और में देना हो कि या तो 101 हो या फिर वो 104 के इक्वल हो, इसको रन क्वेरी कर दो। तो अब देखो 101 और 104, ठीक है। अगर मैं और दे रही हूँ तो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। अगर आप एक ही लाइन में लिख रहे हो तो दैट मीन्स आप क्या करो, मल्टीपल कंडीशंस को सेटिस्फाई करो, उसको स्पेसिफाई करो एक तरीके से, राइट। सो इन दिस वे वी कैन, अगर आपने सेव करना हो तो क्वेरी सेव कर सकते हैं, यस। क्वेरी का नेम लेट्स सपोज क्वेरी 1, ओके। तो ये आपकी क्वेरी 1 जो है यहाँ पर आपकी सेव हो चुकी है। ये भी आपका जो रिजल्ट आएगा वो टेबल की फॉर्म में ही आएगा, राइट। सो अब हमने जो डिस्कस करना था फ्रॉम हियर वी हैव डिस्कस्ड द डेटाबेस क्वेरी, क्वेरी क्रिएशन यूजिंग विजार्ड, क्वेरी क्रिएशन यूजिंग डिजाइन व्यू, एडिट करना भी हमने डिजाइन व्यू में सीख लिया, राइट। सो आई होप इन दिस वीडियो जितने भी हमने कंसेप्ट्स डिस्कस किए दैट आर क्रिस्टल क्लियर नाउ। In our next video, we will discuss the SQL commands, insert, update, delete, alter, ये सारी commands हम discuss करेंगे। That video will gonna be very important plus informative also. And if you like this video, do press the like button and share your views in the comment section. Don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. Till then, keep watching, keep studying.